बिलाल अभी रुक जाइए हमने क्या आगे खड़े जाते हाँ वही ना हम साथ में जस्ट रेडी लेफ्ट में लेफ्ट में Can you please click a picture for the time? मैं तो करवा लिया सेंटर में भाई इसको आगे जाएगा मैं तो पीछे रह आजा पीछे स्कूल सेंटर में हाँ बस ये Excuse me, here center. Yeah, center. Excuse me, look here. Yeah. अरे वो उसका होर्डिंग तो है ना माया का हाँ विक्रम सर एक यहाँ पे सर स्ट्रेट हाँ सर एक साथ में करते ना एक साथ में अरे रुकना वो अंदर होएगा ना सब भी करेगा तो अंदर क्या होएगा समोसा खा के भाग जाएगा माफी चाहेंगे थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे कि एम्बियंस ही लेना पड़ेगा माइक है नहीं माइक अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा तेज बोल देंगे तो ये कैच कर लेगा हाँ ये बताता हूँ या फिर ठीक है तो मैं काम करता हूँ बोलता ही नहीं हूँ नहीं बोलिए प्लीज मैं जिन्होंने काम किया है एक्चुअली उनको बुलाना चाहूँगा क्योंकि मैंने कहानी लिखी है लेकिन जो हिम्मत का काम किया है वो कृष्णा ने और ये दो लड़कियों ने किया है क्योंकि ऐसी कहानी बनाना ऐसी कहानी को ऐसी कहानी में इतने कन्विक्शन के साथ एक्ट करना बाकियों को तो पता नहीं लेकिन मुझे ये एहसास दिलाना कि शायद एक्चुअली कुछ चक्कर लग रहा है तो ये बड़ा ही कमाल काम किया है इन्होंने कि मैं भी कभी कभी इनके इंस्टाग्राम पे चला जाता हूँ कुछ चक्कर तो है नहीं लेकिन वहाँ तो कोई कहानी मिली
the block of the old gym. और लीना जी आइए. Please come. Real, please. अब ये हर लव स्टोरी में मेरी लाइफ की तरह है, जब सब खत्म हो गया तभी हेलो. हाँ, तो हर एक लव स्टोरी में विलन्स तो होते हैं. तो एक विलन जो है प्रणव, जिसका चेहरा आपने प्रोमो में तो देखा, जिसका घिनौना चेहरा, वो ट्रैफिक में है. और जब भी यहाँ पे व्यू में कोई भी शो होता है तो आदमी फन रिपब्लिक के पास ही अटका हुआ होता है कि मैं फन रिपब्लिक के पास हूँ. तो कुछ आधे घंटे से वही है. लेकिन सॉरी, आई डोंट नो योर नेम. Tanvi. Tanvi is here. Come please. Tanvi is one of the characters who is most interesting in the show. लेकिन without any time waste, please come here. मैं माइक इन फ्यूचर जनरेशन को देना चाहूँगा क्योंकि आज का दिन इनका दिन है. आज का दिन is all about what they have been able to achieve. So feel free to ask them. I think you all can ask questions if you all want. Yeah, I'm sure they want to. Yeah. So how difficult was it to romance with them? Yeah, and this is expected, you know. सबका पहला question यही है, how did you kiss a girl? Of course it is difficult because you never imagine doing all of this. Challenging था, but कोई doubt नहीं था जब कृष्णा ने story narrate की. I think नहीं, सच्ची कृष्णा is here. मैंने वहीं पे कह दिया था, yes I'm doing it. I just want to know who's the girl playing opposite me. She said 20 minutes. She was the fastest. So both of them actually 20 minutes. You know what the meaning of this is, right? No. You is the girl opposite me. इसके हिसाब से मैं lesbian बनूंगी. And then you know what that means further? That Leena convinced her to do it. No. No, I think I asked her the same question. Yeah, everybody wants to know who's the girl opposite, not who's the guy. Krishna ji, don't you think the subject is very bold for Indian audiences? No, wait, my mic नहीं वो ऑन है आप करीब तेरी लगी. आवाज बोलो. No, I don't think it's bold for Indian audiences because I think कि हम लोग underestimate करते हैं अपने Indian audiences को. They are not stupid or they are not backward or orthodox कि हम लोग सोचते हैं कि they are not ready for all this. They are actually very ready and मैंने जो YouTube पे comments पढ़े हैं, I mean they are so encouraging. There are so many people who want to talk about this openly but cannot. So I think it's not too bold. I think it is time we don't underestimate how intelligent Indians are as viewers. Were you inspired by films like Fire? No, I wasn't inspired by anything except the fact that two people can be in love no matter who they are, what they are, and you should not make a definition of normal based on what you think is normal. Love is love, no matter where. So what next? A feature film? I don't know. Dad, next feature film. Producer साहब से please बोलिएगा कि मुझे feature film दे. देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या आता है. भट्ट साहब कहानी आपने लिखी. जरा बताएं किस तरीके से आगाज हुआ कहानी का. माइक पे प्लीज. ये फोन बंद कर दो यार, किसका है? जैसे मायावन हमने बनाई थी, तो माया का जो ये फ्रेंचाइज है वो उसमें हम उस टैबू सब्जेक्ट्स पे बात करना चाह रहे हैं जिस पर कोई और बात नहीं करना चाहता. जैसे मायावन BDSM के ऊपर है, माया 2 सेम सेक्स रिलेशनशिप पे है. लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग ये हंसी मजाक कर लेते हैं और हाउ वाज इट टू किस अ गर्ल और ये सारी बातें कर लेते हैं. बट ऑन द सीरियस साइड मुझे लगता है कि हमने जब सबको इतनी आज़ादी दी है इस देश में, हर किस्म की आज़ादी, आप अपना मज़हब फॉलो कर सकते हैं, आप अपना मज़हब प्रीच कर सकते हैं, आपके पास हर किस्म की आज़ादी है. सिर्फ
इन लोगों के पास आज़ादी नहीं। और हमारा ये मानना है कि अगर हम कहते हैं कि जोड़ियाँ जो हैं वो ऊपर बनाई जाती हैं, स्वर्ग में बनाई जाती है, ये भगवान बनाता है। हमारे दिलों में प्यार जो है वो ऊपर वाला ही कहीं डालता है। तो अगर ये उसने ही हमें बनाया है और अगर उसने हमें ऐसा बनाया है तो फिर गलत कैसे हो सकता है? कानून अलग बात है, कानून पे विचार विमर्श अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, देखिए कानून को बदलने वाले हम, कानून को बदलने के लिए और भी लोग हैं और नेताएं हैं, लेकिन हम अपनी सोच तो बदलें। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कोई प्रोमो आता है तो बहुत से अच्छे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ऐसी लड़कियों को मार देना चाहिए, ऐसी लड़कियों को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी सोच क्यों? क्यों इनकी मर्जी नहीं चल सकती? ऐसा क्या है? तो ये जो ख्याल है वो मेरे मन में आया और मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सा कहने को है। एक अच्छी कहानी भी है और कहने को भी है। तो ये मेरे ख्याल से यही थी प्रेरणा इसके पीछे। फिल्म जी आप ज़्यादातर जाने जाते हैं हॉरर फिल्म के लिए, तो आपने इस सब्जेक्ट का चयन कैसे किया? मैं क्या करूँ यार, ये हॉरर फिल्म मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन अगर आप बीबी ऑन द वेब जो हमारा ऐप है उस पर जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें हॉरर कुछ है ही नहीं। अनटचेबल्स जो हमने बनाई वो एक कोर्ट रूम ड्रामा है, माया 1, माया 2, ट्विस्टेड 1, ट्विस्टेड 2। तो मैं एज ए डायरेक्टर शायद हॉरर बनाना पसंद करता हूँ, या हॉरर चलती है तो लोग मेरे पास बनवाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ऐप का सवाल है, वहाँ अलग अलग डायरेक्टर हैं, कृष्णा है, अनुपम है, सिद्धांत है, तो उनकी अलग अलग पसंद है। और ऐप तो सब लोगों के लिए होता है, सिर्फ हॉरर फैंस के लिए। आप लोग के लिए कितना चैलेंज था इस तरह से स्टोरी को एक्टिंग करना? वेल आई वुड से चैलेंज तो कोई भी रोल करो, हर एक में चैलेंज होता है, या कोई भी डिफरेंट रोल करो कुछ भी। बट इस ये ज़्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक आई थिंक एज वेल लव स्टोरी। बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं प्ले कर रही हूँ। एंड आई थिंक मैंने ये डिसीजन लेने में आई वुड से मैक्सिमम आधा घंटा लिया होगा, तो मैं ये रोल कर रही हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मैं But so in the same day we met Priyal and Leena. Aliba And in बोलो। the same day they both asked the same question. We meant to be Films हम together, shoot you कर know. रहे हैं, We meant to play Maya. ये Yeah. यहाँ आ जाइए। शूट करता हूँ, And शूट that's करके फोन because- करता ये विलन, अरे विलन को हेलो। विलन बना संस्कारी। आज भी मैंने विलन वाली हरकत करी है। तो ये है प्रणव, ये है विकास, और प्रणव के प्रोमोज देख ही लिए हैं आपने कि कैसे वो बेचारी लड़कियों का बुरा इस्तेमाल करता है। या वी बिलीव दैट यू हैव सम टेरिबल हेट मेल कमिंग योर वे। Yes. प्लीज टेल देम अबाउट। जी, तो ये वही मैं डर रहा था कि मुझे मुझे लोग मारे वारे नहीं, बिकॉज व्हाट्सएप मुझे इजिप्ट से भी सर एक मैसेज आया अच्छा बताइए। अब उसमें सर ने लिखा है वी हेट यू ऐसा करके। तो बट मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ, मुझे सर विक्रम सर ऐसा बना देते हैं हर शो में विलन बना देते हैं, अदरवाइज आई एम नॉट लाइक दैट। और सर मेरी मम्मी को लगता है कि आपको मुझे इनोसेंट वाले रोल देने चाहिए। उन्होंने बोला बड़ा innocent ही तो कर रहा है। बोली बॉर्न इनोसेंट मेड विलन। विक्रम जी आपकी नेक्स्ट फिल्म आदत के बारे में कुछ बताएंगे? विक्रम जी हाल ही में ऋषि कपूर जी ने एक कमेंट किया था कि उन्होंने पूरे भट्ट खानदान के साथ काम किया है, तो ये गर्व की बात है आपके लिए, आप क्या कहेंगे? मेरे साथ नहीं किया। ऋषि कपूर की बात क्यों कर रहा है यहाँ माया में? कोई लेना देना नहीं है। इतना हमने मस्त लेस्बियन स्टोरी बनाया तो फिर वेल क्या आप लोग एक्साइटेड हो वेब सीरीज को देखने? एल्बर्ट। जितना बेचारे क्या बोलेंगे, कमेंट हो जाएंगे।
सब लड़के तो हैं हम श्योर। तो ठीक है, अभी हम लोग पराग, so you can do your photographs and भैया ये ले आ, ये बहुत जरूरी है, फिर अलग अलग काट के छापना मत। पराग, सवाल खत्म हो गए हैं। वैसे शुरू ही नहीं हुआ। Come. Come. आ जाओ भाई। Come. आ जाओ भाई। चलेगा ना? चलिए। ठीक है? कृष्णा जी प्रणाम। Don't always look in the middle, otherwise कट जाता है इससे। हीरोइन के पास रहना चाहिए, या एक हाथ होना चाहिए था, ताकि काटे नहीं। कृष्णा जी साथ में। मैं एक बात बताऊं, पहले इनको सर कर सर दो, वो पहला कर दे। क्योंकि मैं भाग जाऊंगा। हंसी नहीं, and rightly so. ठीक। क्या ले रहा था? What are you doing? मैं तो दिखने दे यार। ये ग्रेट कपल। कम किस कार करके मतलब Thanks to Krishna. Done? Thank you. अलग अलग खड़े रहे। सोलो सोलो। चेक करने को। He looked the pen also. Hola. अच्छा नहीं लगा। Yes ma'am, yes. कृष्णा मैम। कॉम्बिनेशन रह गया तो बहुत से बेटा। कृष्णा जी आप। कृष्णा जी सामने। थैंक यू। विक्रम सर। एक और
से भी है, देखना आपको सामने। ओके सॉरी. कृष्णा जी, टॉपिक ये है कि जब इस तरह का टॉपिक आपके पास आया, क्या सबसे पहले दिमाग में आपके आया कि एज एन डायरेक्टर मुझे ये करना है, या क्या कुछ दिमाग में आया? जब एक्चुअली माया 1 डैड ने डायरेक्ट की थी, तो जब उन्होंने बोला कि तू माया 2 कर, मैंने सोचा कि आप तो मेरे को हम हमेशा आपके कंपैरिजन में ही रहेगा यार. अनटचेबल्स में आप थे, माया 1 आपने डायरेक्ट की थी. सो फर्स्टली इट वाज डायरेक्टिंग अ फ्रेंचाइज दैट हैड बीन स्टार्टेड बाय माय डैड. The second thing is that when he said that Maya 2 should be a lesbian love story, firstly when I was very blown कि इतना bold subject हम कर पाएंगे, will audiences warm up to it. The same questions जो आप सबके दिमाग में है, I had the same questions. लेकिन the minute I gave it like 10 minutes of thought, मैंने कहानी सुनी और 10 मिनट सोचा, and I thought there was no better script than this to tell. क्योंकि love stories हम लोग बहुत लड़का लड़की रोम कॉम देख लिया है हम लोगों ने LGBT पे बहुत जोक्स भी बना लिए हैं. आई थिंक बहुत फन एंड फ्रॉलिक वाली शोज बना दिए उन पे, लेकिन देयर हैज़ नेवर बीन अ सेंसिटिव लव स्टोरी अबाउट 2 people in love who are women. So I thought कि there is nothing more bold and challenging for me to do next than to do Maya 2. ओके, अगर कैरेक्टर की अगर बात करिए तो कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए किरदार को प्ले करना, उस किरदार को पकड़ना? वेल हम दोनों के लिए चैलेंजिंग था, एंड आई थिंक कृष्णा के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग था, बिकॉज हम दोनों को झेलना. हाँ यार बहुत. 3 लड़कियां सेट होती है तो आपको पता है क्या होता है. बट I don't think there was a problem. नेवर तो बट हैंडल तो करना पड़ा ना हमको. कृष्णा वाज देयर. नहीं वो एक्चुअली सिर्फ 3-4 दिन हैंडल करना पड़ा, फिर तो मतलब ये लोग फ्लो में थे यार. फिर मैं सोच रही थी कि इनकी लव स्टोरी एक्चुअली साइड पे चल तो नहीं रही है, ये लोग वैनिटी वैन में जाके कर क्या रहे हैं ये लोग. मतलब इनके बॉयफ्रेंड / फ्रेंड या जो भी है लड़के इनकी लाइफ में निकलने वाले हैं बहुत जल्दी. उनको डर लग रहा था उनके इट लिए. वाज फन एंड हम बहुत खुश हैं करके. उस वक्त भी शूटिंग के वक्त भी बहुत मज़ा आया. एंड बिकॉज ऑफ कृष्णा ऑनेस्टली बताऊं, आई वुड से अगर कंफर्टेबल ज़्यादा था, मेल डायरेक्टर होते तो शायद हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते. बट थैंक्स टू कृष्णा. यस. कृष्णा जी ने भी बताया इस वेब सीरीज के बाद अगर लोगों ने आप लोगों के ऊपर डाउन करना चालू कर दिया तो क्या टेक होगा? अब नहीं हाँ एक्चुअली इट्स आवर जॉब. अगर शायद नहीं भी होगा तब भी लोगों ने बोलना है, होगा तब भी बोलना है, तो फर्क नहीं पड़ता. आई एम वेरी कि हाँ ठीक है जो बोलना है एक्चुअली बोलना है. अच्छा है ना, दैट मींस दे बिलीव द स्टोरी. हाँ, मैं इसी से खुश होंगी कि हाँ ये कन्विंस हो गए. बस हो गया. और उस रूमर वक्त भी होता है, रूमर भी बाद थोड़ा में नया याद किस्म करके का हो रखता है गया ना. इंसान. रूमर भी बोरिंग हो गया है ना, हाँ. लड़का लड़की या लड़का तो लड़की. अच्छा हमारी लाइफ ये में कोई rumor थोड़ा कंट्रोवर्सी हो नया जाएगी. होगा. और एक कोई भी कंट्रोवर्सी हो एक्टर्स के लिए तो सही होता है. ओके, तो तकरीबन कितने किसिंग सीन होंगे आप लोगों के दोनों के? मैम मैंने काउंट नहीं किया. आई स्टॉप्ड काउंटिंग आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज मेरे को लगता है कि वी काउंट किसिंग सीन्स एज इफ इट्स समथिंग टू सेल. लेकिन इस शो में हम लोग किसिंग सीन्स बेच नहीं रहे हैं. किसिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव. आप ये नहीं पूछते कि कितनी बार हाथ पकड़ा आपने शो में. सो आई थिंक कि हम लोग को थोड़ा मतलब काम डाउन होना चाहिए कि किसिंग सीन है, किसिंग एक्चुअली सीन जब है. हम स्टोरी सुनते भी हैं तो हाँ. हम सिर्फ किस नहीं देखते, हम हाँ. पूरी लव स्टोरी सुनते हैं, हम फील करते हैं और तब जाके हम उस स्टोरी के लिए अग्री करते हैं. इट्स नॉट बिकॉज उसमें किस है तो हमने अग्री किया है. लेकिन किसिंग So- सीन भरपूर है, हाँ. लव मेकिंग सीन भरपूर है, तो भरपूर है, इसलिए हमने बहुत बहुत भरपूर है. ऑल्सो बिकॉज दे आर मैडली इन लव. सो of course when 2 people are madly in love they will kiss each other, they will get intimate, वो love making होगा. तो जो भी है it is as per the story. ऐसा कुछ बेचने के लिए नहीं है, not vulgar. So yeah. लव स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी जहाँ पे जेंडर या और कुछ मायने नहीं रखता, पर सोल टू सोल एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो कनेक्शन दिखाया है. सो आई थिंक फिजिकली आई वुड से मैटर करता है, पर वो सेकेंडरी आता है. फर्स्ट इज लव, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है तो मतलब लिप टू लिप कनेक्शन तो होता ही है. वो तो ओके, अगर ट्रोलिंग की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से ऐसा कुछ भी आता है तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है इंटरनेट पे, यहाँ पे सोशल मीडिया पे, हर चीज़ को लेकर ट्रोलिंग. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप रेडी हैं उन सब सारी चीज़ों को? वेल वो ऑलरेडी हो चुका है. शुरू हो चुका है कि तुम ये रोल कैसे कर सकती हो, शर्म नहीं आती, 2 लड़कियां कैसे किस कर सकती हैं, प्यार कैसे कर सकती हैं, दिस इज़ अननेचुरल. बट
मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लव स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट लव। हम वही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लड़के लड़के के बीच में प्यार नहीं हो सकता, प्यार लड़की लड़की के बीच में भी हो सकता है, लड़के लड़के के बीच में भी हो सकता है। बट वो है कि हम उसे देखते नहीं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कई बार ऐसे, ये चीज़ नहीं, पर कोई भी चीज़ हम कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, इट डजंट मीन कि वो गलत है, वो चीज़ ही गलत है। हो सकता है वो चीज़ सही हो, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो हम दुनिया को भी नज़रिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक सब आजकल बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, सो सारी चीज़ों को समझेंगे, यानी प्यार को अप्रिशिएट करेंगे। कृष्णा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो मैं थोड़ी ऑब्सेस्ड हूँ यूट्यूब कमेंट्स से। तो जैसे ही वीडियो रिलीज़ हुआ तो मैं यूट्यूब कमेंट्स पे जाती हूँ और उसे घूर घूर के सब यूट्यूब कमेंट्स को चेक कर लेती हूँ, उनके रिप्लाईज भी देखती हूँ, उन पर फाइट्स भी हो रही है तो देखती हूँ। लेकिन इस पे 95% अच्छे कमेंट्स थे। इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने लिखा कि आई एम अ लेस्बियन, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आई एम अ लेस्बियन एंड थैंक यू सो मच दैट आप लोगों ने इस बारे में बात की। ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ऑल्सो बोला कि द 5% के छी ये कैसे हो सकता है और आपका दिमाग ख़राब है, भट्ट फैमिली का तो प्रॉब्लम ही ये है, आप लोग तो मतलब कुछ भी दिखाते हो, ये छी घिनौना कैसा दिखा सकते हो। बट दैट इज़ 5% ऑफ द पीपल, I think not even 3% of the people, but the rest 97% of the people ने इतनी अच्छी comments दी हैं। People are saying कि they are waiting to see something like this, which just shows कि how underestimated we are in our thinking. Thank you so much.